ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਆर्टिस्ट भी मौजूद ने। हेलो मैम, योगिता जी, क्या हाल चाल है? वेरी नाइस। सो सब तो पहला बहुत बहुत मुबारक आपको। एक बड़ा ही कमाल का आपने जो मेकअप किया है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि पता नहीं कितनों लोगों को आपको डराया होगा। मतलब फिल्म में तो डराया है जो लेकिन जब सिनेमा में हम सब ने देखा ना तो एक बार के लिए लिटरली हमें लगा कि यार स्क्रीन से बाहर आ गए आप लोग। दैट वॉज डेलिबरेटली डन। वो हमारी इंटेंशंस यही थी कि वो बहुत हॉरिबल लगे और एक ज़ॉम्बी रियलिस्टिक लगे। और इनफैक्ट जो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग हम लोगों ने डे 1 से करी थी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, 3D प्रिंटिंग, और इनफैक्ट जो हम लोगों ने ग्राफिक में काम किया है वही चीज़ हमने स्कल्प्ट करी और सेम चीज़ का हम लोगों ने सिलिकॉन प्रोस्थेटिक बनाया है। ये देखो कितना हैवी है प्रोस्थेटिक। एंड द एक्टर्स दे ऑल हैव हेल्प्ड अस सो मच। इन लोगों ने थ्रू आउट बियर किया हमको इन सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स को पहनने में। जिन दिनों हम लोग ये शूट कर रहे थे उस समय 12-13 डिग्री का टेम्परेचर रहता था। फुल फॉग, पंजाब के ओपन फील्ड्स में इतना कोहरा, इतनी धुंध रहती थी कि इनफैक्ट हमारे बाल भी पूरे ओस से गीले हो जाते थे। और इन लोगों पर हम लोग एक एक बाल्टी खून डालते थे, इनके कॉस्ट्यूम चिपक जाती थी एंड दे वर सो फुल ऑफ एनर्जी। और आज तक टिल टुडे आज हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इन लोग का हमें अभी तक वही सपोर्ट मिला है जो हमें डे 1 पे मिला था। तो नो वर्ड्स। इट लिटरली वेरी हार्ड टू प्ले सच काइंड ऑफ रोल्स, है ना। बहुत मुश्किल होता है ऐसा रोल्स प्ले करना, है ना। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ? ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਕੇ ਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਜ਼ੋਂਬੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਂਬੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ ਸਟੰਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ੋਂਬੀ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਸਟੰਟ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਟੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਸਟੰਟਮੈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੰਟਮੈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੰਟਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦ। ਇੱਕ ਰੇਲ ਵੀ ਕਰੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਾਸੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ੋਂਬੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵੀ ਨਾ ਸਟੰਟਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, मैं तो इतना ही बोलूँगा। अच्छा योगिता जी, मेरे को ये लगता है कि ना एज आ मेकअप आर्टिस्ट सबसे मुश्किल काम होता है प्रोस्थेटिक का, क्योंकि वो डिटेल्स, वो चीज़ें करने में टाइम लगता है सबसे ज़्यादा, अचीव करने में। कितना टाइम लगा आपको ये चीज़ें सीखने में? क्योंकि ऐसी जो डिटेल्स हैं, क्योंकि अभी मैं स्कार्स देख रहा था ना, तो वो डिटेल्स अभी भी हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। कैमरा में हम देखते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन आँखों से इतनी डिटेल्ड वर्क करना लिटरली इट्स हेड्स ऑफ टू यू। आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कितना टाइम लगा उस चीज़ को? आई वुड रियली अप्रिशिएट योर आई फॉर डिटेलिंग। आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मायने रखती है वो आपने नोटिस किया। यू हैव दैट आई फॉर आर्ट। और नाउ कमिंग टू दिस, एक एक पैच हर एक डिज़ाइन पर मैटर करता है कि आप कितना इंटेंस उसको दिखाना चाहते हैं। जैसे ये वाला डिज़ाइन
ऑन एन एवरेज एक टीम जो हमारी एक बहुत ही सूदिंग स्पीड रहती है, कंफर्टेबल स्पीड रहती है, ये हम 2 हफ्ते में बनाते हैं। बट इट वॉज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस। हम लोगों ने गन पॉइंट में पूरा डिज़ाइन 2 दिन में क्रिएट किया है फ्रॉम स्क्रैच। और ये वाले डिज़ाइन ऑल दीज डिज़ाइंस आर क्रिएटेड बाय माई टीम। इन लोगों ने ये मैक्सिमम 4 या 5 घंटों में तैयार करे हैं फ्रॉम स्क्रैच। लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, एक इस पैच को लगाने के लिए हमको 4 बंदे लगते हैं। और अ डिज़ाइन लाइक दिस वुड इंक्लूड 2 पीपल फ्रॉम द टीम। और ये सिर्फ लगाने की बात नहीं होती है, एक्टर्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है वो कितना संभाल के रखते हैं थ्रू आउट द डे। दे डोंट एक्टर्स आर नाइस इफ दे डोंट टच देयर फेस इज सो प्रेशियस ड्यूरिंग द मेकअप। हम लोगों की जान अटकी रहती है कि इफ़ दे हैव दैट इची फीलिंग, कुछ स्क्रैच कर दे। तो इन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, दे हैव बीन रियली वेरी कोऑपरेटिव। जो भी हम मेकअप करते थे थ्रू आउट, जो सुबह 3 बजे रहता था वो रात के 3 बजे भी वैसे ही रहता था। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड बहुत ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोडक्ट्स। एंड उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना आप और भी लेके आएंगे हमारे लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, God bless you. We are really looking forward. Punjab cinema happened for the first time in our life. Before this, we used to explore the markets in Hyderabad, Mumbai और out of India में भी सर्बिया, नेपाल, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए। पंजाब हमारे साथ पहली बार हुआ है और ज़ॉम्बीलैंड अपने में इसने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है। इसने पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को, आने वाले न्यू कमर्स को, फ्रेशर्स को, जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको अपने आप को पुश करने के लिए, अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए एक इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। आई एम श्योर द ऑडियंसेस आर गोइंग टू लव इट। आने वाले 10-12 साल तक तो लोग इस मूवी को याद रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे ना हम हर आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आपका डेब्यू है पंजाबी इंडस्ट्री में, आपका स्वागत है, आपको बोल रहे हैं आपका स्वागत है, क्योंकि फिल्म के लिए ना जितने आर्टिस्ट ज़रूरी हैं उतने जो हमारे बैक एंड की टीम है ना वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। और आपका डेब्यू पंजाब में आप आके आपको कैसा लगा और कितना फ़र्क लगा? ये बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है आपने। पंजाब में आके हमको बहुत घर जैसी फीलिंग आई है। हमको लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है स्टार्टिंग में, बट पीपल हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। पंजाब में कुछ तो बात है, जो म्यूज़िक यहाँ का सारा हिट होता है। चाहे अगर हमको समझ भी नहीं आते तो हम सारी पंजाबी गानों में डांस तो ज़रूर करते हैं। हमारी वेडिंग्स में अगर हमारे ब्रेकअप भी हो रहे हैं फिर भी हम पंजाबी डांस म्यूज़िक चला के गाने सुनते हैं। जस्ट तो डेफिनेटली बिल्कुल भी ना समझ में क्या कहना चाहते हैं, एनर्जी जो बीट है उस पर हम तो आते हैं तो ट्रैवल करते समय पूरे पंजाबी सॉन्ग सुन रहे होते हैं। मैम कितनी बार रिपीट करिए कि क्या बात है कि पंजाबी सारे गाने हिट हो जाते हैं, सारे गाने सारे के सारे हिट। और हमने मतलब जितने भी सिंगर से ऑलमोस्ट मिले, ऐसा था कि हम जिस होटल में थे उनके जो गार्ड थे वो इतनी मस्त सिंगिंग इतनी मस्त सिंगिंग, हम तो चौंक गए कि गार्ड है और इतनी सुरीली आवाज़ उनकी। तो मैम ने उस एवरीवन इज सो मल्टीटास्कर। चाहे एक्टर्स हो, इनको डांस करना भी आता है, इनको एक्टिंग आती है, स्टंट आता है और कॉमेडी आती है। ये लोग तो नॉर्मल कोई भी गाने का लिरिक्स भी चेंज करके अपनी ट्यून डाल के टोटली गाना चेंज कर देते हैं। एवरीवन इज सो लवली, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। इनफैक्ट दे ऑल आर सो रिस्पेक्टफुल। आई हैव नो वर्ड्स लेफ्ट। थैंक यू सो मच मैन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड होप कि हम ये ऐसे इंटरव्यूज़ दोबारा करते रहें, ज़ॉम्बीलैंड के सक्सेस पे करें और ज़ॉम्बीलैंड के जो आने वाले और पार्ट्स हैं विच वी वुड प्लान तो वो करें। डेफिनेटली वी कैन हैव दैट सॉन्ग ना, पिंड तेरा सारा ज़ॉम्बीलैंड बनेया तू आग दे चंडरा ना 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 ना। ज़ॉम्बीज़ एवरीवन कम, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। पिंड तेरा सारा ज़ॉम्बीलैंड बनेया तू आग दे चंडरा मारदा, पिंड तेरा सारा ज़ॉम्बीलैंड बनेया तू आग दे कोको पिंड गेड़ा मारदा। एक और टांगों को थोड़ा राउंड घुमा के आ जाओ सारे मूड बना के। ऑल द ज़ॉम्बी ऑल द ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी डांस 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 ज़ॉम्बी डांस। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਖਾਨ ਸੋਣ ਮਲੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਂਬੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬੱਲੀਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ क्या बात है। तो फिल्म सारे ने जरूर देख के आनी है, पिंड पिया सारा 13 जून मतलब कि कल नूं सारे परिवार नाल जाओ। एक अच्छा टॉपिक मिलूगा, एक अच्छी कहानी मिलूगी ते पंजाब च लग
ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਰਸ਼ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਲੱਗ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਸੁਬੇ ਲੱਗਣਾ ਸਰਪੰਚਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਰਪੰਚਾ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਰਪੰਚਾ ਅੱਜ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਐ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਿਮਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸਭੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਭਰਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।